मेरा नाम नितिन कपूर है और आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ हैं जसपाल जी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, शुरुआत करते हैं जसपाल जी के साथ। नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, आदाब। मैं जसपाल सिंह। कि आपसे बात होती हुई तो बताया आपने कि भाई मैंने एक हॉस्पिटैलिटी करियर से अपनी शुरुआत करी थी। हाँ जी। जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, हॉस्पिटैलिटी भी कैसे शुरू हुआ? ਬਈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਰਨੀ 2011 ਤੋਂ, ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਓ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਾਈਸ। ਤੇ 2011 ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਰਸ ਲਿਆ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਬੈਗ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਟ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8-10 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। नहीं तो अब आप पहले तो ये बताओ कि न्यूजीलैंड ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अच्छा। ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਵਾਈ ਨੋਟ ਟਰਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। Absolutely. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਤੇ PR ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਆ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ PR ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हाँ जी। सो 2011 में आपने प्लान किया कि आपको न्यूजीलैंड आना है, आपने वीज़ा लगवाया, स्टूडेंट वीज़ा लगवाया। हाँ जी। और आप वहाँ से सीधा क्राइस्टचर्च आए थे आप? नहीं, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑकलैंड तो। अच्छा जी। 6.5 साल ऑकलैंड, फिर 5 साल अपने वेलिंगटन। ओ शाबाश। अच्छा, हाँ मतलब जी। पूरा न्यूजीलैंड देख लिया आपने। डेढ़ साल हुन क्राइस्टचर्च हो गया है। तो आपने जब व्हेन यू लैंडेड इन ऑकलैंड, तो आई एम श्योर बड़े कल्चरल शॉक होते हैं इंसान को जब पहली बार वो इंडिया से आता है, तो है ना? और ये आपका पहला फॉरेन ट्रिप था? हाँ जी, फर्स्ट ट्रिप था। फर्स्ट ट्रिप था। हाँ जी, हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम ऑन द एरोप्लेन वाज रियली एक्साइटेड। व्हेन आई लैंडेड आई वाज बिट टायर्ड। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਾਈਸ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੂਆ ਟਰੋਂਗੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਬੇ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ। ਨਾਈਸ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡੇਟਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਲੇ 3 ਵੀਕ ਅਵੇ। अच्छा, आप विंटर बैच में आए थे आप? ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ, वो विंटर बैच शुरू होने वाला था। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। अच्छा जी, नाइस। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਬਾਈ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ ਰਹੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਵਾਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਕੋਰਸ ਯੂ ਸੈਡ? ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਔਰ ਡਿਗਰੀ? ਇਟਸ ਵਾਸ ਅ level 5 diploma in hotel hospitality and management, and that for 2 years? 1 year कोर्स। अच्छा, मतलब एक ही साल का वीजा लेके आए थे आप? 21 साल का वीजा लेके आए। अच्छा, तो आपने वो कोर्स खत्म किया अपना और आप उसके बाद आपको जॉब मिली कैसे, मतलब हाउ डज इट? हाँ जी, मैं वो भी स्टार्ट करदा आ। ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ 3-4 ਵੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਕਲੈਂਡ। ਆਕਲੈਂਡ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਫ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੌਬ ਟਰਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ CV ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌਬ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੌਬ ਢੂੰढ ਰਹੇ थे उस समय? हाँ जी। अच्छा जी। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੌਬ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ 6 month एक क्लीनिंग जॉब मिली। 6 months आपको लगे एक स्टूडेंट वीजा की जॉब ढूंढने में, और ये 2011 की बात है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। यू आर सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट फॉर एवरीवन राइट नाउ। हाँ जी, वेरी ट्रू। कि मतलब हिम्मत ना हारो, फल ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ 2012 'ਚ, ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਰਨੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ।
अच्छा, मतलब 1 साल का कोर्स किया आपने, फिर आपको एक एक्सटेंशन वीज़ा मिला 1 साल का, जिसमें आपको जॉब ढूँढनी थी और फुल टाइम काम चालू करना था हाँ अपना, जी, और वो 6 महीने आपने उसमें सिर्फ जॉब ढूँढने के लिए लगाए, हाँ फिर जी, फाइनली आपको जॉब जॉब मिली। मिल किस गई। होटल में जॉब मिली आपको वो? ਮੈਨੂੰ मिली सी क्वेस्ट अपार्टमेंट होटल। अच्छा जी, और ये सिटी में था, ਇਹ सीबीडी में? ਸਿਟੀ में था नेक्स्ट टू द स्काई सिटी, अरे वाह, नाइस, क्वेस्ट ऑन हॉब्सन। बहुत बढ़िया। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾर्ਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ क्वेस्ट तो ਜਰਨੀ अपने ਦਾ। क्राइस्टचर्च में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ਹਾਂਜੀ, इट्स अ चेन ऑफ क्वेस्ट होटल्स। इट्स अ चेन होटल वेरी गुड। ਆਲ ਓਵਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਕੁਐਸਟ ਔਨ ਹੌਬਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, व्हिच डिपार्टमेंट वाज इट? ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨੀ, अच्छा, एज अ ट्रेनी। ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। नाइस। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। आई एम श्योर, आई एम श्योर। ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ, ਓਨਰ ਕੋਲੋਂ। हाँ हाँ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਆਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, नहीं देनी, ਰਾਈਟ बिल्कुल ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰਾ ਜੋਬ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ, नाइस। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ शिफ्ट किया वेलिंगटन फॉर अ चेंज, सेम प्रॉपर्टी, सेम ब्रांड। सेम ब्रांड। ओ नाइस। तो मतलब 5 साल लगे आपको फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनने में, एक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, लेकिन मेहनत लाइक यू डिस्कस, हाँ बहुत जी। बढ़िया। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जब आपने ऑकलैंड में काम किया, क्योंकि ऑकलैंड में बहुत भीड़ है, जैसे कि क्राइस्टचर्च में नहीं है, आप देख सकते हो कि हाँ जी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, और वहाँ तो मतलब आई थिंक इट्स मोर लाइक बिगर कंट्रीज लाइक यूके हो गया या कनाडा हो गया, बस वैसी ही फील वहाँ पे भी आती है, हाँ जी। है ना, क्योंकि हमारे जैसे बंदे बहुत हैं वहाँ पे देसी। तो अगर मैं कहूँ कि बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, जैसे आपने बताया कि जब आप इंडिया में होते हो और वर्सेस आप यहाँ आ जाते हो पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो वो मिसकंसेप्शन जब टूटती हैं दिमाग में कि यार मैं सोच के आया था कि ऐसा होगा और अब तो ऐसा हो गया, हाँ जी। तो हाउ डज इट, कोई एग्जांपल देना चाहोगे लोगों को बताने के लिए कि यार ऐसा मैं सोच के आया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये हो गया? ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। बिल्कुल सही। ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਟ बिल्कुल सही। ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ हाँ, ਕਿ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾइंड द सीन ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। सबको रिजल्ट दिखता है लेकिन कोई जर्नी दिखता नहीं है। ਹਾਂਜੀ, सब लोग रिजल्ट देखते हैं कि ਰਿਜ਼ਲਟ यार ਦੇਖਦੇ बंदे ਆ को ਕਿ देखो, ਉਹ ठाठ हो ਬੰਦਾ गया भाई ਦੇਖੋ, ਹਾਂ देखो, ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। बाहर थे मजे नहीं, but ਮਤਲਬ actual ਬਾਹਰ में- ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। तो कितने घंटे आप काम करते थे उस समय जब आप ਬਾਈ work ਮੈਂ visa पे ਜੇ थे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 3 ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। Oh my God, nice, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। nice। तो तकरीबन 24 घंटे में से आप कुछ नहीं करके भी तो 18 घंटे काम करते 18 हैं। ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। वाह, और ये कितना ट्यूरेशन लगा आपको करने में? मतलब ਮੈਂ कितना ਉਹ लगा? ਪੂਰਾ 2012 ਦਾ ਮੈਂ 3 ਜੌਬਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਈਏ। जान ना दीजिए, बिल्कुल सही। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ 3 ਜੌਬਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ अच्छा, जब ਕੀਤਾ। आप आए थे तो डॉलर का क्या रेट था? ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 32, 32, तो आज 50 रुपीज हो ਅੱਜ गया। 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 53 तक भी टच करके गया है। हाँ, मैंने देखा था इसमें, मतलब जब मैं पहली बार पढ़ने आया था यहाँ पे तो डॉलर का रेट 30 रुपीज़ था, विच वॉज इन 2005-06, और 2011 में भाई बता रहे हैं कि 32 तक रेट चला गया था, और आज की रेट में वो रेट 50 रुपीज़ के आसपास है। तो आप सोचो कि जो न्यूजीलैंड में फ़ीस मैंने पे की थी, मेरे पेरेंट्स ने पे की थी यहाँ पढ़ाई करने की, और जो भाई ने पे की थी वो 32 रुपीज़ के हिसाब से थी, और आज वो फीस जो है वो 50 रुपीज़ के हिसाब से देनी है आपने। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ $120 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਵੀਕ, बस, शाबाश। ਜਿਹਦੇ ਚ $100 ਰੈਂਟ, हाँ हाँ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ $20। $20। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं भी मैकडॉनल्ड्स काम करता सीखा है, एंड आई वाज वेरी, बट हाँ उस समय मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे कुछ कैसे कैश भी मिलते थे, तो उस कैश पैसे से मेरा चलता था गुजारा, लेकिन बाकी सारे पैसे जो थे वो मेरे किराए में निकल जाते थे। हाँ और हम एक घर में, मुझे याद है 3 बेडरूम का घर था और हम 7 लोग उसमें रहा करते ਸੇਮ थे। 6-7 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ। और सब लड़के थे भाई साहब। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ
सारे मुंडे यार दोस्त। हाँ, तो अब आपने वहाँ पर काम किया और आपको मौका मिला वेलिंगटन आने का। हाँ जी, वेलिंगटन मूव हो गए तो फिर। अब वेलिंगटन में और ऑकलैंड में क्या आपको डिफरेंस दिखा सबसे पहले तो पहुँचने के साथ ही? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਆਕਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਰੇਂਜ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਰਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा जी। ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। और ट्रैफिक कितना है? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਤਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ट्रैफिक कितना है? ਪਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨਾ, हाँ हाँ हाँ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਵੱਧ ਨੇ। ਗਏ ਨੇ। ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अरे वाह, वेलिंगटन इज अ गुड प्लेस। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ मुझे ਪਲੇਸ। काफी लोगों ने बोली है ये बात कि वेलिंगटन इज अ वेरी गुड प्लेस। ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਿੰਡੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਵੈਦਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। शाबाश। ਹਾਂਜੀ। तो वेलिंगटन अच्छा विंडी तो क्राइस्टचर्च भी हैगा वैसे है ना? ਵਿੰਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਵਾ अच्छा वखरी है। ਵੱਖਰੀ ਆ। वखरी है। समझ गया जी, समझ गया। तो when you told me about those challenges that occurred, रूम ढूंढने में दिक्कत होती है इंसान को जब पहली बार वो आता है, तो थोड़ा अंग्रेजी में भी हमारा हार्ट टाइट होता है भाई जब हम पहली बार आते हैं ਹਾਂਜੀ, तो, है ना? ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਲੋ हाँ, ਦੇ मतलब ਲੈਵਲ ਤੇ एक ਨਹੀਂ। तो एक्सेंट समझना बड़ा डिफिकल्ट है हाँ यू जी। नो कीवीज का। उसके बाद फिर हमें जब समझ में आना शुरू होता है तो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि समझ तो लेते हैं वो बोल क्या रहा है, लेकिन हम समझा नहीं पाते कि हम क्या बोलना चाहते हाँ हैं जी। उसको, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब हम प्रो हो जाते हैं इनके साथ यू नो बिकॉज हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी ठीक हो जाती है। बट ये तो बड़े बेसिक कल्चरल चेंजेस हो गए हमारे डिफेंस में। ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जब आपको लगा कि यार ये तो मतलब मैंने गलती कर दी और शायद मुझे इससे मुझे यू नो मेरा फाइनेंशियल या मेरा इमिग्रेशन लॉस भी हो सकता है? ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है आपकी लाइफ में? ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, अच्छा जी। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। हम्म ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਉਰੇ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, बिल्कुल सही गल है। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ। नाइस। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਸੀਗਾ। महीने का सीगा। ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਮੰਥ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਿਆ ਹਾਰਡ, ਬਟ फाइट कर ली सी। फाइट करी, मिल गया दोनों वीजा। हाँ पर जी। मतलब फाइनली देखा जाए तो आपने इमोशंस को आपने ऊपर रखा बजाय कि अपने करियर एडवांसमेंट को, हाँ क्योंकि जी। ऑब्वियसली बात है यार बहन की शादी तो एक ही बार होनी है ना, हाँ बार बार जी। तो नहीं होनी उसमें भी। बहुत बढ़िया। और अब आपकी इंडस्ट्री पे आते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपने इंडिया में तो कभी काम किया नहीं था? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ अच्छा। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। हाँ मतलब लेकिन हॉस्पिटैलिटी में कभी काम नहीं ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ किया। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। तो ਹਾਂਜੀ। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो स्कोप है, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही कोर्स लेके आते हैं, पर वो कोई डिप्लोमा करता है, कोई डिग्री करता है, कोई लेवल 7 करता है, कोई लेवल 8 भी करता है। कुछ लोग इंडिया से होटल मैनेजमेंट करके आते हैं, यहाँ पे मास्टर्स करते हैं आके। ਹਾਂਜੀ। तो आपको क्या लगता है कि जब आपने इंडस्ट्री में इतना टाइम काम किया आपने हॉस्पिटैलिटी के अंदर, क्या लगता है आपको कि क्या इंडिया से किसी को होटल मैनेजमेंट करके यहाँ आना चाहिए या यहाँ आके कोर्स करना चाहिए उसे लेवल 5 या 7 या 8 जो भी है, और या फिर कोई छोटा कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करके भी कोई इंसान आज की डेट में यू नो कैन गेट अ फुल टाइम वर्क जॉब? पॉसिबल है? ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। वेरी गुड। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਫਰਦਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। अच्छा मतलब इंडिया से कोई आदमी डिग्री करे और डिग्री करके कम से कम 2 साल काम करे और उसके बाद शायद हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे आए, ਹਾਂਜੀ। बजाय इसके कि वो सीधा ही रॉ 12वीं करके यहाँ पहुंच जाए, ਹਾਂਜੀ। है ना जी? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਰਦਰ ਜੌਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। बिल्कुल सही। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। और कस्टमर सर्विस का ना एक्सपीरियंस इंसान को इंडिया से ही मिल जाता है, क्योंकि वहाँ कस्टमर सर्विस कम से कम थोड़ी, मुझे लगता है कि थोड़ी वहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़्यादा है बजाय कि यहाँ के। यहाँ काफ़ी कैजुअल हिसाब किताब है, यहाँ लोग जो हैं थोड़े से हाँ फॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, बट ये है कि ज़रूर जैसे इंडिया में सर्विसेज जो होटल्स की हैं
वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है एज़ कम्पेयर टू किसी और कंट्रीज से न्यूजीलैंड है, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया, जितना भी मैंने होटल्स देखे हैं यहाँ पे, मेजरली यहाँ पे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़, जैसे क्राइस्टचर्च की बात ही करते हैं, तो मैं 2 होटल जानता हूँ, एक क्राउन प्लाजा और एक नोवोटेल। हाँ जी। इसके अलावा मैं ऐसा कोई होटल नहीं जानता जो स्टार कैटेगरी में आता हो और बड़ा एरिया मैनेज करता हो, क्योंकि आई थिंक पहले होता ना, क्वेक से पहले थे होटल्स भी, लेकिन अब आई थिंक दीज आर द ओनली 2 प्रॉपर्टीज दैट आई नो, 2 ब्रांड्स दैट आई नो व्हिच आर एज बिग एज अ इंडियन होटल्स, हो तो से। तो बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि इंडिया से कोई अगर एक्सपीरियंस लेके आता है तो उसके लिए काफ़ी ईजी होगा यहाँ ईज़ी पर होगा, हाँ जी। मोल्ड करना अपने करियर को। अच्छा, अब जब आप इंडिया से न्यूजीलैंड आए तो आई एम श्योर बंदा बड़ा होमसिक भी होता है, उसको लगता है कि यार रोटी बनानी पड़ रही है, खाना बनाना पड़ रहा है, या फॉर दैट मैटर, क्योंकि रोज तो आपने बताया 120 की सैलरी है तो क्या ही खा लेगा बंदा बाहर से, है ना। हाँ जी। बट हम थोड़े लकी होते हैं हॉस्पिटैलिटी वाले, क्योंकि हमको खाना स्टोर्स में मिल जाता है, क्योंकि हम तो काम ही वही करते हैं, तो हाँ हमारे तो जी। ड्यूटी मील है वो आइडिया। या तो एक एज है हमारे पास। बट इसके अलावा होमसिक होने के और क्या मतलब किन किन चीज़ों में आपको लगता है इमोशनली बंदा यार ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ कोप ਮਿਸ कैसे करता है उसको? ਪਿੰਡ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, नाइस, ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਾਂ नाइस, ਜਿਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ब्यूटीफुल। ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ नहीं ਹੋਮ होती है। ਦੀ। सो बेसिकली अपने आप को बिजी बिजी रख, करना, हाँ जी। काम के अलहदा भी कुछ और किया हाँ जाए जी। जिससे बंदा बिजी रहे। हाँ जी। आई एम श्योर, बहुत बढ़िया, सही बात बोली आपने। और अब आते हैं आपके करियर शिफ्ट के ऊपर। तो पहले तो आप वेलिंगटन में काम कर रहे थे, अब ऑकलैंड, इंडिया से ऑकलैंड, ऑकलैंड से वेलिंगटन, अब वेलिंगटन तब तो हॉस्पिटैलिटी में ही थे। हाँ जी। अब ये रियल एस्टेट कैसे आया पिक्चर में? ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ 10 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, बहुत बढ़िया। ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜੋ। ਜੇ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, सही बात है। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। बहुत बढ़िया। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਸੈਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਪਲੇ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। So when you say real estate was just by just because of the customer service trait that you had, not हाँ like जी। कि प्लान किया था कि यार ये नहीं जॉब करनी है and all नहीं, that, वो कोई प्लान नहीं हैगा कोई प्लान सीगा। नहीं किया था। तो अब आप थोड़ा बताएंगे आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और आपका असल में काम होता क्या है? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਵਿਕਟਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ। नाइस। ਕਿਸੇ और ਨੇ ਵੀ सिर्फ क्राइस्टचर्च में? ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ Oh, ਹੋਵੇ, nice। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। समझ गए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, बहुत बढ़िया। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो हारकोर्ट्स में कितना टाइम हो गया आपको? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो हाँ जी। बेसिकली हारकोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਕੋਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ। नाइस। ਹਾਂਜੀ। तो यू हैड स्टार्टेड दिस इन वेलिंगटन या क्राइस्टचर्च आके ही ਨਹੀਂ, आपने? ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ अच्छा, पहले आप मूव हुए फिर आपने जॉब देखा? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, अच्छा अच्छा अच्छा। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ Congratulations। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ,
अच्छा, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ जी, क्योंकि ओह! ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, अच्छा, ਫਿਰ अच्छा। ਮੈਂ ਲੈਵਲ 4 ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹਾਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। नाइस। तो मतलब पढ़ाई कितने टाइम की पढ़ाई होती है वो? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, अच्छा, ਬਟ ਮੈਂ 6 ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। करते थे। ਹਾਂਜੀ। वो दोनों पहले एक्सपीरियंस भी कस्टमर सर्विस, ਹਾਂ, you know ਮੇਰੇ ਕੋਲ how ਥੋੜਾ it is। ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। अच्छा, तो इसमें आपने हार्कोर्ट्स की जॉब उस लाइसेंस के बाद आपने अप्लाई करी और ਨਹੀਂ, फिर आपको ਜੌਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਅੱਛਾ। ਕੇ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, एंड देन यू started working with them। ਹਾਂਜੀ। तो अब आपका एक दिन जनरली वन डे इन योर लाइफ what do you do when you go to office in the morning? How does it start? ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ, ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ So basically a consulting role is what you do right now rather than just selling it like in India। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੁਗੇਦਰ। Very good। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं हमारे कि भाई अपनी कमीशन ली और बाहर हो नहीं, गए, वो ये चीज़ नहीं हैगी। ये बड़ा सीरियस प्रोफेशन है यहाँ पे। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਸਭ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ पेपर आपने वर्क। बताया लाइसेंस लेना पड़ता है, तो मतलब फिर तो एकदम सीधी बात हो गई कि यार बिल्कुल बंदा कुछ गलत बोल ही नहीं सकता ना। है ना। यू हैव टू लर्न एंड देन एक्सप्लेन एंड देन डिलीवर व्हाट द कस्टमर इज आस्किंग फॉर। हाँ जी। एंड इवन अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है किसी घर के बारे में और आपने वो फुलफिल नहीं किया है, तो वो बंदा आपको कोर्ट तक ले जाएगा। हाँ जी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी। सो अल्टीमेटली आपने अपना करियर शिफ्ट किया फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू रियल एस्टेट। इनफैक्ट आपने सिटी भी चेंज करी, आप वेलिंगटन से आ गए क्राइस्ट चर्च। अब रियल एस्टेट में क्योंकि देखो प्रॉपर्टी की मार्केट इंडिया में तो देखिए आपने कैसी होती है हाँ ना, जी। किस तरीके से काम होता है, और यहाँ पे बड़ा अलग काम है, आपने बताया जिस तरीके से। तो अगर कोई बंदा इंडिया से ही रियल एस्टेट का कोई कोर्स करना चाहे, तो क्या कोई एजुकेशन भी होती है इसकी यहाँ पे आने के लिए, या सिर्फ ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं, या हाँ शॉर्ट जी। टर्म कोर्स करेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ अच्छा ਔਰ जी। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा, मतलब ऐसा कोई वर्क एजुकेशन वीज कोर्स नहीं है इंडिया हाँ, से? ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਡਰ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ, नाइस। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेसिकली ट्रेडी जिसे कहते हैं यहाँ पे हाँ हम। जी। So you have to basically do all these courses, coming here, gain a license for that, and then obviously you'll make money। हाँ जी, ਬਟ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ हो ਪਰਮਾਨੈਂਟ जाओगे। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ। हाँ जी। Nice, ਜਾਂ nice। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ। But do you think after working for so long in this industry that is it a worthwhile profession, or do you think hospitality was better? ਇਟਸ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਟ ਹਾਰਡ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, शाबाश। ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब घर बेचोगे ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਪੈਸੇ ਵਰਨਾ ਮਿਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ। हाँ जी। ਵਾਕਈ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਕੀਪ ਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। Nice. So that means you have to build relationships, हाँ जी। connect with people, हाँ जी। network, ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ and, ਜ਼ਰੂਰੀ you ਆ। know, all that। ਜਦੋਂ So ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10-15 ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। I'm sure, but अभी I'm sure आपको क्राइस्टचर्च कम्युनिटी जानती है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने, पूछना नहीं चाहिए वैसे कैमरे में मुझे, बट अभी तक आपने कितने घर बेच दिए हैं लोगों को? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 15 ਘਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ Oh, nice। ਸੋ ਫਾਰ। ਬਾਕੀ ਔਨ ਦਾ ਲਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ पाइपलाइन ਬੰਦੇ। भी है अपने हाँ पास जी। अभी। वेरी गुड। तो मतलब देखा जाए तो लोग घर खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ जी। मतलब हिंदुस्तान से या किसी और कम्युनिटी से आकर,
लोग घर तो सिर्फ इंडियन ही लेते हैं घर हमसे या और भी मतलब? नहीं, सारे ही लेंदे आ। अच्छा, अलग अलग कम्युनिटी लोग भी हाँ लेते जी। हैं। तो बहुत बढ़िया है। और क्या प्राइस रेंज रहती है घरों की थोड़ा सा? ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ फर्स्ट ਘਰ होम ਲੈਣਾ, लेगा कोई? ਫਸਟ ਹੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 550 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, मतलब $5.5 लाख में आपको एक 2 बेडरूम घर मिलेगा। ਹਾਂਜੀ। और ये क्या लोकेशन क्या होगी इसकी? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ। सिटी एरिया। ਹਾਂਜੀ, ओके ओके, तो मतलब 5.5 लाख में आपको 15 मिनट दूर घर मिल ਮਿਲ सकता है। ਸਕता ਹੈ। और आजकल मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो नेबरहुड्स है जैसे कि रोलिस्टन है या रेंगियोरा है, इसमें काफ़ी डिमांड है लोगों की कि यार वहाँ घर लेना है क्योंकि वहाँ शायद थोड़ा सा बड़ा घर मिल जाता है इतने पैसे में। हाँ जी, इतना अभी नहीं है प्राइस। प्राइस अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होगा। 5.5 का तो अभी नहीं मिल सकता नहीं मिल रोलस्टन में सकता। भी, हम्म। क्योंकि कोविड करके थोड़ी बिल्डिंग का सप्लाई बढ़ गया है बढ़ और गया, अच्छा कॉस्ट जी। बढ़ गया है। तो अभी अगर रोलस्टन में आपको घर लेना है, मिनिमम 700 के आपको स्पेंड करना पड़ेगा। वो 2+1 ही होगा लेकिन 2 बेडरूम का घर ही नहीं, होगा वो भी। 3 बेडरूम का मिल अच्छा, वो जाएगा। 3 बेडरूम का हो हाँ जाएगा। जी। और रेंगियोरा के आसपास करेंगे तो? रेंगियोरा के पास करेंगे सिमिलर प्राइस। अच्छा जी, तो किस और मतलब कैंटरबरी में एक क्राइस्टचर्च हो गया, एक रेंगियोरा हो गया और एक ये हो गया आपका रोलस्टन हो गया। और कौन सी अपकमिंग मार्केट्स आपको दिखती हैं? ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਵਿਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੋਲਸਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਇਪੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਰੋਲਸਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਰੇਵਨਸਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਗਿਓਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, अच्छा, कैंटरबरी में ये एरिया जो आपने बताया ये हैं थोड़े पॉपुलर ਪॉपुलर एरियाज हैं। एरियाज। हाँ जी। और एक और मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है घर को लेके, इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल उसमें ये हाँ कि जी। क्या बेटर लगता है आपको कि कोई बंदा लैंड खरीदे या घर खरीदे? अगर क्योंकि इंडिया में देखो हम बड़ा अलग सोचते हैं, हाँ लेकिन जी। यहाँ पे आने के बाद वो प्राइसिंग बड़ी डिफरेंस हो जाती है, इसलिए हम सोचते हैं कि यार एज अ इंडियन व्हाई कांट आई बाय अ लैंड, क्योंकि अगर मैं लैंड लूंगा तो वहाँ पर कम से कम मैं अपना घर अपने हिसाब से बना सकता हूँ, हाँ इट विल जी, टेक टाइम। टाइम लगता है ज़रूर, बट जो घर आप बिल्ड करोगे यू कैन बिल्ड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जो बना बनाया लोगे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग। तो कितना कितना व्हाट डू यू रेकमेंड कि क्या आपको लगता है कि मुझे घर लेना चाहिए या मुझे, मेरे पास मान लो $4 लाख है, जो सॉरी 4 लाख नहीं है, मतलब मेरे पास $1 लाख है, मैं लोन लूंगा ऑफ कोर्स, हाँ तो जी। क्या मुझे लैंड लेनी चाहिए या मुझे घर लेना चाहिए? आप एज अ हाउस एंड लैंड पैकेज ले सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है जिसमें आप लैंड बाय करके उस पर घर बना सकते हो। बहुत बढ़िया। और कितना डिफरेंस होता है प्राइस में इसमें? उसमें आपको कम से कम भी 50 to 100,000 डॉलर यू कैन सेव। अरे भाई वाह, क्या बात है। मतलब मैं 5.5 का घर 4.5 में ले सकता हूँ, वो भी तब जब मैं और प्लस लैंड भी मिलेगी साथ में मुझे उसके। हाँ, लैंड भी मिलेगी। उसमें चाहे मैं फिर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एक डू अ हाँ लिटिल जी, बिट ऑफ फार्मिंग और इट समथिंग लाइक डिपेंड दैट। कि मतलब साइज लैंड के हिसाब से। अगर आपको बड़ी लैंड चाहिए ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा आई एम श्योर। अगर आप रीजनेबल लेते हो आपको तो मिल जाएगा। तो रीजनेबल इंडिया के हिसाब से क्या होती है? अगर आप देखोगे मिनिमम, अगर आपको लेना है 200 स्क्वायर मीटर का सेक्शन आपको इंडिया के हिसाब से इट्स वर्थ। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे लैंड को मेजर करने का जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर्स होता है, इंडिया की तरह स्क्वायर फीट या एकड़ या फॉर दैट मरले। मैटर वो सब नहीं हाँ होता है। जी। तो स्क्वायर मीटर इज द ओनली वे, इज इट? और भी कोई यूनिट है इसके अलावा? नहीं, स्क्वायर मीटर ही तो है। स्क्वायर मीटर इकलौती यूनिट है, आप गूगल पे जाकर चेक कर लेना कि कितने स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितने स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर 200 स्क्वायर मीटर का लैंड आपने बताया, यानी कि करीब करीब मुझे लगता है कि अच्छा साइज, इट्स अ डिसेंट इट्स अ साइज, डिसेंट साइज। हाँ जी। है ना? और वो नॉट कितने टू का? बिग नॉट टू नॉट टू स्मॉल। स्मॉल। और कितने का बताया आपने मुझे वो आपको मिल सकता है अगर आपको उसमें घर बनाना है 5.5 में हो जाएगा। अच्छा, वो भी इतने का ही मिलेगा, तो हाँ मतलब जी। 5.5 का लैंड मिलेगा, फिर आप घर नहीं बनाएंगे नहीं, उसमें? 5.5 में आपको एज अ ओह, हाउस। एवरीथिंग टुगेदर। हाँ जी। नाइस, बहुत बढ़िया। अगर आपको थोड़ा बड़ा जाना है 400 स्क्वायर मीटर का सेक्शन, उसमें आपको 3 बेडरूम घर बनाना है 700 के बहुत बढ़िया। का। तो बहुत सारे लोग जो हमें क्राइस्टचर्च से ही देख रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा चल रहा है सेशन यहाँ पे ये। तो अब हमने ये नोटिस किया कि यार एक सर्टेन प्राइस रेंज के अंदर हमको चल गया पता कि कहाँ क्या किस तरीके की लैंड मिलती है। अब हम सोचते हैं कि यार अगर हमको सपोज करिए कि अगर हमको घर लेना है, खरीदना है, आपको तो आपका मैं ईमेल एड्रेस बाय द वे डाल दूंगा अपने हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में ताकि लोगों को पता हो कि कैसे अप्रोच करना है आपको हाँ इसके लिए। जी। दूसरा ये कि अगर मैं ये चाहता हूँ समझना कि मुझे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे घर के आसपास होनी, लाइक स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो मतलब देखता है जनरली बिफोर बाइंग होम और फर्स्ट होम सो टू से? आपको मेनली आपने बताया स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पार्क्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के खेलने के लिए, बस स्टॉप बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट मतलब लेट्स से कि कार
कहीं खराब होगी, खराब let's say. होगी, Yeah, something सो like यू that. हैव अ हैंडी बस स्टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Hmm. सो पार्क हो गए, जैसे अब मैंने आपको बोला है, ये चीज़ें मोस्टली बंदे People ask देखते for हैं। that. हाँ जी, So when you look all of this, and I think जितनी भी जगह आपने मुझे गिनवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उन सब जगहों के आसपास ये सब कुछ है, हाँ जी, सब कुछ तो है। फिर प्राइस डिफरेंस क्यों है? लोकेशन करके अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई। ओके ओके, मतलब जिस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रैशेस की बात करूं, जितना मैं जानता हूं, हाँ जी, पापा नूई एंड मैरीवेल विल बी रैंक्ड अ लिटिल हायर, हाँ जी, पार्कलैंड्स विल बी हायर, फेंडल्टन उससे भी। या देन लिनवुड फॉर दैट मैटर, सो इट हाँ जी, डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी लोकेलिटी। कि यार। अभी एक घर आप देखोगे कि 5.5 का मिल रहा है एक लोकेशन में, वही घर आप जाओगे इट्स ओवर मिलियन। अच्छा जी, इतना फर्क है, हाँ मतलब जी, डबल का ही फर्क है देखा जाए डबल तो, का ही सीधा फर्क सीधा है, ही लोकेशन। लोकेशन की बात है। हाँ तो जी, भाई रिटेल का फॉर्मेट यहाँ भी चलता है एकदम, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन, इसी बात के पैसे हैं। हाँ सो जी। अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि हमने लैंड वर्सेस होम, तो आपने बताया कि ऑप्शन डुअल भी है, ऑप्शन दोनों दोनों है। है, आप अगर घर लेना है बना बनाया, वो भी ले सकते ले हो। सकते हैं। अगर आप बनाते हो तो ऑब्वियसली आप मतलब अपने अगर कोई फैमिली तरीके से। काम कर रही हाँ है, जी, दोनों बंदे वर्किंग है, तो नहीं टाइम निकाल पाते हैं बनाने का अपना खुद का घर, या हाँ किसी को जी, हायर करें फॉर दैट मैटर, और किराया भी भरें और इसकी भी ईएमआई भरें। सो वो कहते हैं नहीं छोड़ यार, अपना ही नया घर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोन बैंक से मिल जाता है बंदे मिल को लेने जाता के है। हाँ लिए। जी, तो इससे बेटर वो, लेकिन कुछ लोग जिनको लगता है कि नहीं यार मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगा, मे बी मैं वहाँ पे एक टाइनी होम बना के रह लूंगा जब तक मेरा घर नहीं बनता, हाँ जी, अपनी लैंड पे, खुद की लैंड पे फॉर दैट या मैटर, तब तक वो रहना चाहता। तो इट इज़ पॉसिबल, बट ओनली व्हेन यू डोंट हैव मे बी चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन एज, क्योंकि फिर बच्चों का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना छोटे हाँ घरों जी, में, हाँ तो जी, यू नीड अ लिटिल मोर स्पेस फॉर दैट मैटर। सो हाँ दैट जी, मीन्स आप लैंड में भी हेल्प करते हैं, आप होम में भी हेल्प करते हैं, और हाँ साथ जी, साथ में आप सेटलमेंट में भी हेल्प करते हैं। हाँ जी। मेरा काम है फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, टर्न की सब कुछ करते हैं अपन, सब कुछ। बहुत बढ़िया। हाउस एंड लैंड पैकेज, टर्न की हो गया, एग्जिस्टिंग हो गया, न्यू बिल्ड हो गए, नियर न्यू हो गया, बट आई हेल्प द बायर फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। वेरी गुड वेरी गुड। सो अल्टीमेटली नए घर बहुत बन रहे हैं, देखा मैंने हाँ भी, जी, सिटी बहुत, में, सिटी के इट्स बाहर भी, बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। क्राइस्टचर्च इज ऑन द पेस। ऑन द पेस। तो और आई एम श्योर जिस तरीके से ऑकलैंड की ग्रोथ हुई है, लेकिन आज प्राइसिंग ऑकलैंड के अंदर जो है वो मेरे ख्याल न्यूयॉर्क और कनाडा के आसपास ही चल रही है। हाँ जी, लेकिन अगर हम बात करें क्राइस्टचर्च की, तो इस समय इससे लो, क्राइस्टचर्च स्टिल अफोर्डेबल। अफोर्डेबल हाँ होम्स हैं जी, यार, बहुत बढ़िया बहुत फॉर बढ़िया। फर्स्ट होम बायर स्टिल अफोर्डेबल, और मार्केट स्टेबल है। So, as someone who's successfully transitioned from hospitality to real estate, what advice would you have for people who are looking to actually switch from a different industry to something else? For that matter, मैं सिर्फ हॉस्पिटलिटी की बात नहीं करता। मेरा एक फ्रेंड है जो हावी नॉन में काम करता है, वो बहुत टाइम से बेचारा काम कर रहा है, और उसको लगता है कि यार अब मैं रिटेल नहीं करना चाहता, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो क्या ऐसा प्लंज है जो आप बोलोगे कि यार लेना पड़ेगा, तभी आप शिफ्ट कर पाओगे? वो मन में डर होता है ना बंदे कि यार पैसे आ रहे हैं और मैं छोड़ दूं और नए वाले में सेटल नहीं हो पाया तो मैं तो फंस जाऊंगा। हाँ जी, सेम इधर देखो, मैंने 10 साल होटल में काम किया, हम्म उधर सैलरी मिलती थी, हम्म ऑन साइट अकोमोडेशन, हम्म फोन कवर्ड बाय द कंपनी, कार पार्क। हम्म अभी सारा गिव अप करके, हम्म इफ यू डोंट टेक अ रिस्क, देयर इज नो रिवॉर्ड। नो रिवॉर्ड। ईदर यू चेंज और रिमेन द सेम। बहुत अगर बढ़िया। चेंज नहीं करोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे फिर। तो मैं पूछ रहा था कि आपको वो जो आपने प्लंज लिया, वो आपने जो छलांग लगाई कि नहीं यार ये छोड़ के वो लेंगे हम, और उसके लिए मतलब एक मेथड एंड मैडनेस होता है ना, हाँ कैलकुलेटेड जी, रिस्क लेता है बंदा। वो चीज़ ऑलरेडी माइंड सेट करके की हुई है, तो मतलब सेविंग आदमी को करनी चाहिए करनी पहले, चाहिए। तीन हाँ चार जी, महीने की जेब में रख के कि रख हाँ के यार अगर मैं ये प्लंज लूंगा तो मैं पहले बैकअप, एज अ बैकअप प्लान पक्का होना हो जाऊं। चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। और और बाकी एक पैशन। पैशन अगर बहुत पैशन जरूरी है। नहीं है तो मैं नहीं बोलता कि आप करो। बहुत अगर बढ़िया। पैशन है, हम्म प्लीज गो फॉर इट, बहुत और बढ़िया। हार्ड वर्क। तो आपकी बातों से मुझे एक बात और अच्छी लगी, वो समझ में आई मुझे, ये कि यार जो लोग कस्टमर सर्विस के लिए पैशनेट है ना, शायद उन्हें ही सिर्फ हॉस्पिटैलिटी का कोर्स लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि एजेंट बोल रहा है ले ले तो तूने ले लिया। आइडली अगर आप पैशनेट हैं अपने हाँ जी, करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, शायद तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपने सिर्फ किसी के बोलने पे ले लिया है तो कोर्स करने के बाद भी जॉब भले ही मिल जाए, बट आप खुश नहीं रह पाएंगे उस या, काम में, है ना? वो फिर आप तो है, ढूंढेंगे कि वो यार तो है मुझे भाई। अब जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं ना कर नहीं कर सकते। सकते। बट ये भी नहीं है ना कि आप अपना दिमाग लगाएं ना, और जो आपको इंडिया में बैठा हुआ कंसल्टेंट बता रहा है आप बस सुन के और हाँ, उसको वो पूरा चीज़ कर आप दें। सुनो सबकी, करो अपने मन की। हम्म, बट ये भी नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही। सर्च करो, गूगल सर्च करो, हम्म, सब कुछ मिलता है उधर। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, आपकी बात हाँ जरूर जी, है। सो अल्टीमेटली
एक ही दरख्वास्त, हम कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है, आप उनकी भी सारी बातें सुने, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें अपने कोर्स के बारे में, अपनी कॉलेज के बारे में, ड्यू डिलिजेंस करें। इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, आप किसी में भी अगर लिखेंगे कि मुझे इस कॉलेज के बारे में या इस सिटी के बारे में कोई हेल्प चाहिए, बहुत लोग हैं जो आपकी हेल्प हाँ करेंगे जी। और आपको जवाब देंगे कि हाँ यार ये सही है, ये नहीं है। आपको किसी से फोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद मैसेज ग्रुप में डालकर भी रिप्लाई पढ़ सकते हैं। गूगल पे इनफ एंड मोर रिव्यूज़ दिए हुए हैं जो सही है गलत है। तो प्लीज़ किसी भी तरीके से गलत कोर्स को, गलत सिटी को या गलत प्रोफेशन को ना चुनें, क्योंकि आपकी एजुकेशन ही आपको यहाँ पर रेजिडेंट बना सकती है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन में ही नहीं कुछ कर पाएंगे तो कोई यूज़ नहीं है आपका यहाँ आके काम करने का, 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट करने का और फिर भगवान से दुआ मांगने का कि यार रब्बा कुछ कर दे। कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप किस तरीके से, हाउ डू यू सी योरसेल्फ कंट्रीब्यूटिंग टू द क्राइस्ट चर्च कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम श्योर आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर ही रहे हैं, हाँ बट जी। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो आपको अप्रोच करें तो? मेनली जो है कि बंदा कोई भी है, किसको भी हेल्प चाहिए, चाहे वो बाइंग में है, सेलिंग में है, बस एक का पता हो कि जसपाल सिंह इज़ द बेस्ट। नाइस, बहुत बढ़िया। कि मतलब वो एक बंदा ऐसा है हम्म, जो हमारी हेल्प कर सकता है। बहुत बढ़िया। ऐसा करना है कुछ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Different from others. You हाँ don't जी। have to, and this basically will be told to a lot of people by your reviews because हाँ I'm जी। sure आपने जितनों को घर इट्स दिलवाया है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट, यू हैव टू मीट पीपल एंड ग्रेजुअली आप ग्रो करते हैं अपनी खुद की लाइफ में। हाँ जी। तो धीरे धीरे करके वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर हॉस्पिटैलिटी करियर एंड वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर रियल एस्टेट करियर। सो हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, सर्विस एंड रियल एस्टेट कनेक्टिंग। कनेक्शन। हाँ जी। कि हम लोग बहुत लोगों को बहुत से एडवाइस देते हैं, खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस एडवाइस के अंदर काफ़ी कुछ। आपकी तरफ से एक ऐसी एडवाइस क्या होगी उस स्टूडेंट के लिए या क्या कहते हैं वर्क परमिट होल्डर के लिए जो या तो यहाँ काम कर रहा है वर्क वीज़ा पर या फिर न्यूजीलैंड आना चाहता है पढ़ने के लिए? एक एडवाइस सिर्फ। फर्स्ट हार्ड वर्क, हम्म, वो जो इम्पोर्टेंट है। हम्म, हिम्मत ना हारो। हम्म। दूसरा गो विद द फ्लो। बहुत अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके। होप करता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ उनके दिमाग में कुछ आए कि हमें भी कुछ करना है। अपनी हिम्मत जारी रखें, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, बहुत और बढ़िया, हार्ड वर्क करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी। थैंक यू सो मच सर। नो वरीज, थैंक यू आपका भी। आज आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मुझे इनकी कहानियाँ बहुत पसंद आई क्योंकि इनकी एक जर्नी है जो इन्होंने पिछले 12-13 साल में कवर करी है और इन 12-13 सालों के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आपने अभी सुने और इन्होंने पूरा का पूरा न्यूजीलैंड जो है वो खुद काम करके सीखे और देखा है और काफ़ी लोगों से मुलाकात करी है। तो इन्होंने जो भी आपको बताया है वो एक वेल वर्स्ड रिसर्च के तहत बताया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग कोई कंसल्टेंट तो है नहीं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस, बाय बाय।